کے بعد مفتی عبدالقوی کا نہ کسی محترمہ کے ساتھ تصویر ہوگی، نہ سیلفی ہوگی، اور نہ کسی ایسے تقریب کے اندر مفتی عبدالقوی شامل ہوگا۔ ویلکم بیک ناظرین، مفتی عبدالقوی یہ وہ نام ہے جو ہر تھوڑے دن بعد آپ کو پتہ ہے کہ خبر کی زینت بن جاتے ہیں، اور کیوں بن جاتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ وہ شخصیت کہہ لیں جن پر آئے روز سوال اٹھتے ہیں ان کی حرکات کی وجہ سے، اور ان کی حرکات پر کوئی سوال اگر نہ اٹھتا، اگر ان کے نام کے ساتھ یہ مفتی نہ لگتا، مفتی نہ آتا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مفتی صاحب کو مسجد یا مدرسے میں تو شاید کسی نے دیکھا ہو، لیکن قابل اعتراض ویڈیوز میں پوری دنیا نے دیکھا اور بار بار دیکھا۔ اب ان کی جو حال ہی میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ سب کے سامنے، اور میرے خیال سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی، بلکہ سب نے دیکھ لی ہوگی، حریم شاہ کی مفتی قوی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو کا سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہے۔ اب اس ویڈیو کے بعد مفتی صاحب کی کئی اور ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں۔ اسی حوالے سے آج میں نے شو میں دعوت دی ہے ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے محتاج نہیں، بہت شکریہ حریم جوائن کرنے کے لیے، اور مفتی عبدالقوی صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے سیگمنٹ میں۔ حریم، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ نے تھپڑ مارا مفتی صاحب کو، یہ کہاں کی ہے؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ آپ کو بلایا گیا تھا؟ اور آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ آپ نے تھپڑ ہی مار دیا؟ جی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ ایک ٹی وی چینل ہے نیشنل چینل جی ٹی وی، ان کی میں ہوسٹ ہوں، اور انہوں نے مجھے مطلب ہفتے میں 2 دن دیے کہ آپ ہمارے چینل سے آ کے ایک پروگرام ہوسٹ کریں گی۔ تو میں نے پروگرام جو ہوسٹ کرنا تھا تو ان میں سب سے پہلے میری جو وش تھی وہ یہ تھی کہ میں ان تمام لوگوں کو اپنے شو کے اندر بلاؤں گی اور ان کو اپنے سامنے بٹھاؤں گی، اور جن کی وجہ سے میرا میڈیا ٹرائل ہوا، اور وہ میں ساری کی ساری سچائی عوام کو بتاؤں گی اور عوام تک وہ ساری چیزیں لے کر آؤں گی۔ اگر مجھے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع ملے، مجھے بولنے کا موقع ملے، تو جو میری غلطیاں، جو میری کوتاہیاں ہیں وہ بھی میں عوام سے شیئر کروں گی، لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب، اور جو مجھ پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب میں بے نقاب کروں گی۔ تو سب سے پہلے میں نے مفتی عبدالقوی صاحب کو وہ سارے پروف، سارے ثبوت میں سارا کچھ اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں۔ آپ ان کو اگر دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ سننا چاہیں تو وہ میں آپ کو سب سنوا بھی دوں گی اور سب دکھا بھی دوں گی۔ میں نے شیئر کیجیے آپ۔ جی مفتی صاحب کو میں نے کانٹیکٹ کیا کہ اس طرح میرا شو ہے جی ٹی وی سے اور آپ نے میرے شو میں آنا ہے۔ تو شو کے لیے آپ کو پتہ ہے ان کو چینل نے کوئی پیسے وغیرہ کچھ نہیں پے کیا، لیکن میں نے ان کو ٹکٹ بھی اپنے پیسوں سے لے کے دیا آنے جانے کا۔ ان کو میں نے 50,000 اپنے جیب سے پے کیا، اور ان کو میں نے جس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا وہ بھی میں نے اپنے جیب خرچے سے ٹھہرایا کہ میرے مہمان ہیں، میرے گیسٹ ہیں۔ اور اچھا حریم سوری ایک منٹ حریم، ایک منٹ، کہاں سے آپ نے ان کو بلایا تھا؟ کس شہر سے آئے تھے آپ؟ کس شہر میں کام کرے؟ اس لیے بھی ذرا کلیئر کر دیجیے۔ جی میں کراچی میں اس وقت مقیم ہوں، میں کراچی سے یہ شو ہوسٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور مفتی صاحب لاہور کے اندر تھے۔ جب میری مفتی صاحب سے بات ہوئی ہے، مفتی صاحب لاہور کے اندر تھے، تو میں نے اپنے ایجنٹ سے ان کا جو ٹکٹ کروایا تھا لاہور سے کراچی کا کروایا تھا۔ ٹھیک ہے جی وہ ٹکٹ۔ اچھا حریم، ڈی ایس این جی بھی اویلیبل ہوتی ہے دوسرے شہروں میں، تو آپ ڈی ایس این جی پہ بھی تو ان کو لے سکتے تھے نا، لائک لاہور سے بھی مہمان بن کے بیٹھ سکتے تھے، اور آپ کراچی سے ہوتی ہیں، ایسی کیا فیسلٹی نہیں تھی وہاں پہ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب ڈی این سی میں نے تو ان کو بلانا تھا نا، بلا کے اپنے منہ پہ بٹھانا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے فیس کرنا تھا۔ اچھا یعنی آپ چاہتی تھی کہ وہ آپ کے آمنے سامنے آ کے بیٹھیں، یعنی آپ پہلے سے چاہتی تھی؟ دیکھیں آپ کو پتا ہوگا، جی سب سے پہلے انہوں نے جو مجھ پہ جھوٹے الزامات لگائے تھے میں ان کا ذکر کروں گی، پھر میں نے جو کیے اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی چینل کے توسط سے ایک سیلفی وائرل ہوئی تھی ایک لڑکی کی ان کے ساتھ، جبکہ میں پاکستان کے اندر موجود بھی نہیں تھی، اور یہ سیلفی آپ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ یہ سیلفی میری نہیں ہے۔ مفتی صاحب کو پتا تھا کہ یہ وہ لڑکی میں نہیں ہوں، لیکن مفتی صاحب نے اس بات کو جانتے بوجھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ حریم شاہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ مطلب پہلا جھوٹ انہوں نے مجھ پہ یہ بولا، جس کی وجہ سے میرا بہت میڈیا ٹرائل ہوا، اور مجھے میڈیا پہ طرح طرح کی گندی باتیں سننے کو ملی، جبکہ میں پاکستان کے اندر موجود بھی نہیں تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کی، میں نے کہا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ان تمام چیزوں کا میں بدلہ لوں گی، اور ضرور لوں گی۔ میں نے اس وقت سے میرے اندر ایک غصہ تھا، میرے اندر ایک یہ سمجھیں کہ مجھے ایک سکون سا نہیں تھا۔ میں نے اس وقت سے وعدہ کیا تھا، اور میں نے ایک چینل پہ بھی بولا تھا کہ اگر زندگی میں مجھے موقع ملا اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تو اس بندے کو میں چھوڑوں گی نہیں، اس بندے کو میں پوری دنیا کے سامنے ذلیل کروں گی اور پوری دنیا کو میں سچ دکھاؤں گی۔ میں نے ایک نیت اور میں نے ایک ارادہ تب سے کیا تھا۔ دوسری بات یہ مبشر لقمان کے چینل پہ میں نے کچھ عرصہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا چھوڑ دی تھی، میں بہت زیادہ فیٹ اپ ہو گئی تھی، میں پاکستان سے باہر چلی گئی تھی، میں باکو کے اندر مقیم تھی۔ دوسرا یہ شو کرتے ہیں جی مبشر لقمان کے چینل پہ جاتے ہیں، اور مبشر لقمان کہتے ہیں اچھا آج کل ان کی ویڈیوز اس لیے نہیں آ رہی، تو یہ آگے سے ان کو کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ان سے نکاح کر رکھے، تو مبشر لقمان کہتے ہیں اچھا تم نے ان سے نکاح کیا ہوا، تو یہ آگے سے ہنستے ہیں،
वो क्लिप भी वजूद है, मैं वो आपको क्लिप भी सेंड कर दूंगी। दूसरा एक मिनट में मुफ्ती साहब ये दावा करते हैं लोगों के सामने, मुबश्शिर लुकमान और बाकी लोगों के सामने, कि उन्होंने आपसे निकाह किया। उन्होंने मुझसे निकाह कर रखे फिजा, लेकिन मैं खलफन कहती हूँ अल्लाह की कसम के तब तक ना मैं मुफ्ती से मिली थी, न मुफ्ती के साथ मेरी कोई मुलाकात थी, और न कभी मुफ्ती से मेरा आमना सामना हुआ था। आपको इस बात की क्या वजह समझ आती कि मुफ्ती साहब लोगों को क्यों कहते हैं कि उन्होंने आपसे निकाह किया? वैसे क्या वजह समझ आती है? वो पब्लिसिटी के लिए आपका नाम यूज करना चाहते हैं, वैसे खुद भी काफी ज्यादा फेमस है मेरे ख्याल से। मुझे ये नहीं पता, ये सारी बातें कहूं तो सही जी, ये सारी बातें आप इनसे पूछेंगे कि इन्होंने इस तरह क्या किया। फिर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, फिर मैंने अपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना कि इनको मैं, इन तमाम लोगों को मैं इन चीज का हिसाब दूं और ऐसे लोगों को मैं वो करूं। फिर अच्छा, थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ वाले जो ताजा वाकया था, पहले जरा ये भी बताइए कि जिस प्रोग्राम के लिए आपने मुफ्ती साहब को स्पेशल टिकट दे के स्टे करवाया आपने उनका किसी होटल में, आपने स्पेशल इनको बुलाया लाहौर से कराची, वो प्रोग्राम का टॉपिक क्या था? आप किस टॉपिक पे बात करने जा रही थी? क्या वो प्रोग्राम फिर हुआ, रिकॉर्ड हुआ, ऑनर हुआ, या लाइव था, या थप्पड़ पे ही मामला खत्म हो गया? नहीं, थप्पड़ पे नहीं, पहले मैंने इनके साथ बैठ के प्रोग्राम वो किया। पहले मैं इनको बस जो मेरी और इनकी गुफ्तगू हुई उस वक्त तक मैं इनको बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मैंने इनके साथ एक शो रिकॉर्ड करना था। मैंने इनको थप्पड़ मारना था, मैंने इनको बहुत मारना था, लेकिन इनको मैंने बाद में मारना था। तब तक वो आपने शायद मेरे ख्याल से क्लियर किया कि आपने दिल में सोचा था कि आप इनसे बदला लेना चाहती थी, बिल्कुल के लिए किया आपने कि इनको बिल्कुल मैं इनको मारना चाहती थी, ये सब कुछ करना चाहती थी। उससे पहले मैं प्रूफ अपने पास रिकॉर्ड करना चाहती थी, हर एक चीज का प्रूफ रिकॉर्ड करना चाहती थी। जब मैं एयरपोर्ट पे गई इनको एक्सपोज करने की नियत से, हाँ, मैंने जब मैं इनको मतलब टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जी आपने मेरे शो में आने, तो इन्होंने पहले कहा कि तुम मुझे गाड़ी के मुझसे वीडियो कॉल पे बात करो। मैंने कहा ठीक है। मुफ्ती साहब तब एक रात को एक पार्टी के अंदर थे, वहाँ पे पार्टी माहौल था। कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मैं बहुत सारे फायदे दिलवा सकता हूँ, हर चीज मेरे पास रिकॉर्ड है मेरे फोन में। आप किसी को कहें तो वो ऑनर चलाते हैं कि मैं सारी चीजें सबूत के साथ लेके आई हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी कि जिसका मेरे पास प्रूफ नहीं होगा। मैं कोई ऐसी बात आपके शो में नहीं करूंगी जिसका सबूत मेरे पास नहीं होगा। इनके टिकट का नाज़रीन ये जानना चाहते हैं, सॉरी मैं आपको मैं इंटरप्ट इसलिए नहीं करी कि मैं सुनना चाहती, मैं चाहती जो हरीम के अंदर है हरीम बोले, लेकिन हरीम मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि थप्पड़ किस बात पे मारा? ऐसा उन्होंने क्या बोला, या आपने स्पेशल पहले सोचा था कि अब कुछ वो हरकत करें ना करें, आपने उनको लाहौर से स्पेशल टिकट देके बुला के कराची में होटल के कमरे पे थप्पड़ मारना है? मैंने ये सोचा था कि अगर ये माफ़ी मांगेंगे मुझसे और कहेंगे कि ये मुझसे नहीं मिले थे, इन्होंने ये इल्ज़ाम मुझ पे बिल्कुल झूठे बेबुनियाद लगाए थे, ये सारी आवाम के सामने इसको कहेंगे तो मैं इनको माफ़ कर दूंगी। लेकिन माफ़ी का मामला ही नहीं आया, इन्होंने बात को और रुके। ये कभी मुझे कहते हैं कि अपनी ज़बान निकालो, मैं उस पर किस करना चाहता हूँ, कभी कहते हैं कि अपने होंठ तो मैं उन पर किस करना। मेरे पास रिकॉर्ड है, प्रूफ है, वीडियो कॉल मेरे पास है, मैं बगैर उसके बात नहीं करूंगी, मैं साथ में लेके आई हूँ, ठीक है। और मैं आगे से हंस के टाल रही हूँ कि ये किसी तरह मैं आगे से हंस रही हूँ और ये कर रही हूँ कि ये बंदा किसी तरह मेरे हाथ आए, मुझ तक पहुंचे। अगर अभी से मैं एग्रेसिव हुई, अभी से मैंने गुस्सा किया या अभी से मैंने ऐसा कुछ शो किया तो ये बंदा मेरे हाथ नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने जब ऐसा कहा, मैंने कहा जी मुफ्ती साहब आप आ जाएं, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो फिर इन्होंने कहा, इन्होंने मुझे कॉल पे कहा कि हाँ अच्छा मुझे सिर्फ 50,000 और आने जाने का टिकट और रिहायशी मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या? अच्छा मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसा कि इन्होंने आपसे पहले बड़ी अजीबोगरीब सी गुफ्तगू की, तो इन्होंने आने से पहले ये भी कहा कि फिर मुझे और भी कुछ फायदे चाहिए आपसे। आप समझ रही मैं क्या पूछना चाह रही? जी बिल्कुल। और ये कि तुम रात मेरे साथ गुजारोगी, सुबह की नमाज तक हम साथ में होंगे और फिर उस वक्त हम ये करेंगे, और पेशानी अपनी इधर करो, मैं तुम्हारी पेशानी पे बोसा देना चाहता हूँ, और तुम जबान निकालो, मैं तुम्हारी जबान पे वो करना चाहता हूँ। और मैंने कहा कहते हैं, और मैं बात में टाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जी मुफ्ती साहब आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आप एक दफ़ा आ जाएं। और ये चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आपके अमले को दे के जाऊँगी, आप ऑनर करना चाहें तो आप ऑनर कर दीजिएगा सारी चीज़ें। और फिर मैंने कहा जी आपको एक मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि चले बदला मैं ना लूं इनसे, ये मैं प्रोग्राम ही कैंसिल कर दूं, ये तो फजूल बातें करने पर आ गए? नहीं, मुझे आपके दिल में बदला का वो इतना था कि मैंने बदला लेना, थप्पड़ मारना है। हाँ फिजा। और जिस रेस्टोरेंट में, अच्छा सबसे पहले मैं इनको इस रेस्टोरेंट में लेके गई, ये मेरे भाई का है, शानदार शनवारी, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, उनके रेस्टोरेंट में मैं लेके गई। और शुक्र है हर जगह मेरे साथ मेरी टीम मौजूद थी और मैं उनके साथ यूं चेयर पे बैठी, और इस बंदे ने वहाँ पे मुझे चेयर के पीछे से हाथ लगा के जब टच किया तो मैंने कहा यहाँ पे अगर किया तो फिर सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं अभी खुद को कंट्रोल करने हैं, बस ये सारी चीजें हो जाएं फिर एक ही दफा। इनको एक थप्पड़ ही नहीं पड़ा, इनको मैंने जूते भी मारे हैं, लेकिन जूते मारने खैर सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मुफ्ती साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, जरा मुफ्ती साहब का भी मौके सुने। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं? टीम मुफ्ती साहब मुझे सुन पा रहे हैं या सुनकर भी नहीं सुन पा रहे? आ रही है। जी बिल्कुल आ रही मुफ्ती साहब। ये अब नई ताज़ा वीडियो आ गई, आपकी वायरल हो गई है। इससे पहले आपने मेरे शो में वादा किया था कि आप किसी लड़की के साथ कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने वादा पूरा नहीं किया। ये नई वीडियो आ गई, आपको थप्पड़ पड़ गया हरीम से। क्या कहेंगे आप, क्यों मारा थप्पड़ हरीम ने आपको? मोहतरमा, बात यह है कि मैं बिल्कुल अपने आहद से पाबंद हूँ। मैं मेहमान था, कराची में एक चैनल है, उसका नाम है टीवी। मुझे मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम के हवाले से दावत देते थे इजहार ख्याल का। जैसे मोहतरम डॉक्टर फिजा साहब जनाब मुझसे जब रब्ता करती हैं तो मैं फौरन आपकी बात के ऊपर रद्द अमल जरूर इजहार करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि आप मुझसे जब बात पूछती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्क और मिल्लत की खिदमत के हवाले से हकायक की बुनियाद पर बात करता हूँ, तो आप आगे उसको जनाब गैर हो जाता है मेरा प्रोग्राम जो आपकी वजह से आए। इसी सूरत हाल में टी टेलीविजन वाले जो है यूनिवर्सिटी के ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हीं की दावत पर मैं पहुंचा कराची पहुंचने के बाद जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो आगे मैंने देखा कि टीवी की तरफ से जो गाड़ी मुझे लेने के लिए आई है उसको मोहतरमा हरीम शाह साहब चला रही हैं और उनके साथ एक और बच्ची मौजूद है। मैं अपनी गाड़ी पे बैठा उनकी इशरार के बावजूद। फिर उसके बाद ये है कि मैंने उनसे जो बात की वो खुद भी तस्लीम कर रही हैं कि मैंने कहा कलमे को गवाह बना लेते हैं ताकि कलमे की बुनियाद पर आप भी एहतराम करेंगे कलमे का, मैं भी कलमे का एहतराम करूंगा और उसके मुताबिक जनाब। फिर बहरहाल हमने खाना खाया, खाने वाली तस्वीर भी उन्होंने डाली हुई है। वो चूँकि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। बाकी लोग भी मेरे साथ तस्वीर बना रहे थे, सल्फे बना रही थी, तो मोहतरमा भी कभी दाएं कभी बाएं। तो उनके जो मालिक थे आशिक हुसैन साहब, उनको मैंने शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि नहीं मुफ्ती साहब आप एतमाद करें, इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। अच्छा। मुफ्ती अब्दुल कवी हर उस बात को मान लेता है जो एक अदब के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ की जाए, क्योंकि आशिक हुसैन ने जब अकीदत और एहतराम के साथ हमें खाना खिलाया, मैं एतमाद। और उसके बाद जनाब मुझे कहने लगे जी टीवी वालों ने आपके लिए इस गेस्ट हाउस में कमरा रखा हुआ है। मैंने कहा कतई तौर पर मैंने वहाँ नहीं जाना। अच्छा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों के यहाँ चला गया, रात को वहाँ रहा। अगले दिन उसी प्रोग्राम जो टीवी का सुबह का प्रोग्राम है मॉर्निंग शो, उसको जनाब जो मुंतजिम है वो खुद तशरीफ ले आए मुझे लेने के लिए। उनका नाम मोहतरम नवीद साहब है। मैंने उनसे पूछा कि जनाब मुंतजिम आप हैं? उन्होंने कहा जी मैं। मैंने कहा आपने तमाम मामलात को देखना है, इसलिए कि हमने वादा किया है कौम के साथ कि हम खवातीन हजरात के साथ आप उस प्रोग्राम को देखेंगे जब वो ऑन एयर होगा। मैं एंकर की तरह बिल्कुल अलग कुर्सी पे बैठा हूँ और उससे 6-7 अच्छा मुफ्ती साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक मिनट। आपने पूरी कहानी सुनाई, मैंने बड़े एहतराम के साथ सुनी। हरीम शाह भी मेरे साथ मौजूद है। हरीम आपने भी सुनी। हरीम जो आप अभी बात कर रही थी, जरा मुफ्ती साहब के सामने कहेंगी कि उन्होंने आपसे किस तरह की गुफ्तगू की और उन्होंने क्या मुतालिबा किया? वो जो आप कह रही थी रात वाली बात, जरा प्लीज दोहरा दीजिएगा। फिजा A to Z इनकी कन्वर्सेशन से लेके मतलब फोन से गाड़ी में। आपने फोन नहीं बंद करना, आपने पूरी बात सुननी है, मुझे आपसे जवाब चाहिए। पूरी कौम आपको देख रही है, सुन रही है, मैं चाहती हूँ कि सबको आप जरा जवाब दीजिए। जी हरीम। मैं पूरी कौम के सामने एक ही बात करूंगी कि जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, और जो बात भी कहूंगी विद सबूत प्रूफ के कहूंगी। कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगी कि जिसके मैं टीवी चैनल को या फिजा आप। अच्छा जरा मुफ्ती साहब से बात कीजिएगा हरीम, उनसे जरा उनके सामने बात कीजिएगा। वो एक कोई और कहानी सुना रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनको जो है तो फोन पे मैंने कांटेक्ट किया, इनको बुलाया, मैं इनको गाड़ी के अंदर मैंने बैठाया और वो ये मेरे साथ सीट पे बैठे थे। वो वीडियो भी अगर आप कहती हैं तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने हर चीज की वीडियो बनाई है और हम हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे हमारी। अच्छा जरा हरीम वो अल्फाज दोहराइएगा मुफ्ती साहब के सामने जो इन्होंने आपको कहते एग्जैक्ट, अगर आपको अल्फाज याद है। मुफ्ती साहब ने पहले मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि अपनी गाड़ी दिखाओ, क्योंकि इनकी हर चीज हम पहले भी रिकॉर्ड करते थे तो इनको डर लगा कि फिर मेरे साथ मेरी कोई कोलीग कंपेनियन तो नहीं है जो इनकी बात रिकॉर्ड कर सके। अच्छा डर है कि मुफ्ती साहब बार बार आपसे मिलने आ जाते हैं। मुफ्ती साहब अगर इतना डरते तो अवॉइड करते हैं ना, आपसे मिलने ना आते। तो इन्होंने मेरी बात सुनी। अच्छा मैंने कहा कोई भी नहीं है। फिर इन्होंने जबकि मैंने इनको गाड़ी दिखाई, गाड़ी में फ्रंट सीट पे मेरे साथ मेरी कजन बैठी हुई थी, मैंने उनको सीट से नीचे किया तो मैंने कहा कोई भी नहीं, ये देखे। मैंने लाइट ऑन किया, गाड़ी दिखाई। फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अपनी पेशानी इधर करो। मैंने कहा जी
फिर इन्होंने किस किया पेशानी पे, मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर कहते हैं कलमा पढ़ो, मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों नहीं कलमा पढ़ेंगे, इसमें कौन सी मज़ाइके वाली बात है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने कलमा पढ़ा। फिर कलमे के बाद इन्होंने मुझे कहा कि अपनी ज़बान निकालो, मैंने कहा हैं। तो फिर इन्होंने गलत किस्म की हरकत की जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। आप मैं चाहती हूँ कि आप टीवी पे ऑन एयर करें, मैं सारे सबूत लेके आई हूँ। फिर मैंने आगे से कहा कि आ जाएं, बस मुफ्ती साहब आप आ जाएं, टाइम पे पहुंचते हैं प्रोग्राम में, बस आगे से इनको मैं चेंज करती रही कि कुछ और ना करें। फिर कहते हैं, फिर इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा क्या, मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैंने बहुत क्लियर अल्फाज मैंने कहा मुफ्ती साहब आपको अपने प्रोग्राम के लिए बुला रही हूँ, आने जाने का टिकट भी दूंगी, रिहाइश भी दूंगी और 50,000 पे करूंगी, ये 3 चीज़ें दूंगी। तो मुफ्ती साहब ने आगे से मुझे कहा कि सिर्फ 50,000 दोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं दोगी। मुझे मतलब तो उनका समझ आ गया था कि ये एक वुमनाइजर है, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को वो किया। मैंने कहा, मैंने आगे से मतलब वो करने के लिए मैंने कहा हाँ मुफ्ती साहब आ जाएं, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, बस आप आ तो जाए ना। तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छा इसके अलावा फिर एक शर्त पे आऊँगा कि तुम मेरे साथ रुकोगी। मैंने कहा इंशाअल्लाह। मैंने आगे से यही बात रिकॉर्ड है और यही रिकॉर्डिंग में एग्जैक्टली यही है, मैंने कहा आ जाए इंशाअल्लाह। ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा हरीम, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी मुफ्ती साहब, आप हरीम की अपनी पूरी बात सुनी, क्या ये सब कुछ हुआ था जो हरीम बता रही हैं? मोहतरमा से मेरे से 2 बातें पूछ ले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जब इनकी गाड़ी आई है तो क्या मेरे साथ 5-6 हजरात मौजूद थे, वो भी कलमा पढ़ के बात कर रही हैं, आप भी अल्लाह को हाजिर नाज़िर मैं प्रूफ के साथ नहीं, मैं हर चीज का सबूत दूंगी। तो झूठ बोल रहे हैं, मैं हर चीज का सबूत लेके आई हूं। बात पर हो रहा है कि आप अल्लाह का नाम लेके बात अल्लाह कर का रहे हैं। नाम नहीं, मैं कसम भी नहीं, वो मैं सबूत दिखाऊंगी। मुफ्ती साहब, अच्छा हरीम पहले मुफ्ती साहब का मैं मौकिफ ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ हरीम दोबारा। जी मुफ्ती साहब। तो उस वक्त मैं इनकी गाड़ी में बैठा हूँ, इनसे यही पूछ रहे हैं कि इनकी गाड़ी में बैठा हूँ जब मैं एयरपोर्ट से कराची। मुफ्ती साहब आप इनकी गाड़ी में बैठे क्यों, आप गए ही क्यों, आप गए ही क्यों? अच्छा दूसरी बात है कि आप लोगों को ही कहते हैं, आपने मुबश्शिर उस्मान साहब को बोला कि आपने हरीम से निकाह किया होगा, आप ऐसी बात करते हैं? मौजूद थी तो मुफ्ती साहब की आवाज। मुफ्ती साहब आप क्या लोगों से ये भी कहते हैं कि आपने हरीम से निकाह किया हुआ है? मामला हो मोहतरमा बात सुना कि मुझे जब बोलने दे तो ये खामोशी से सुने, जैसे इन्होंने बात की मैंने खामोशी के साथ सुनी। मैं 4 बातें हर वक्त कह रहा हूँ, अल्लाह को जानकर ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में बैठा, इनकी गाड़ी में नहीं बैठा। अल्लाह को आगे नाज़िर जानकर मैं कह रहा हूँ कि जब इनकी गाड़ी आई तो मेरे साथ कम अज कम 4 से 5 नौजवान जो फ्लाइट से उतरे थे वो मौजूद थे। मैं अल्लाह को आगे नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जिस वक्त इनकी गाड़ी आई है उससे पहले कम अज कम 51 से 52 लोग मेरे साथ तस्वीर बना चुके थे। आप इस सूरत हाल के अंदर जिस वक्त एयरपोर्ट है, कराची का एयरपोर्ट है, आप खुद जनाब हकीकत की तरफ जाएंगे तो हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। जिस वक्त मैकडोनल्ड के सामने कराची एयरपोर्ट के बाहर जो लोगों के हुजूम की जगह है, और आपको पता है आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोगों को जरा वक्त से खड़ा करके अच्छी बड़ी तादाद मौजूद है, तो क्या इसी दौरान मैंने इनको माथे पर बोसा भी दे लिया, इनकी जबान को भी चूस लिया। खुदा ना वो बातें की जाए जो अकल की बातें की जाए, हकीकत की बातें की जाए। अल्लाह की तरफ से जनाब आपने जवाब दी, मैंने भी देनी है। मोहतरमा ये भी कहती है मैं इस्लामियात की तालिब इल्म हूँ। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर इस कदर जब मैं गफीर में जिसमें एक तरफ। अच्छा मुफ्ती साहब एक मिनट, अगर मैं आपकी पूरी कहानी भी यकीन कर लूं, ये देखने वाले नाज़रीन यकीन करें, अगर तो आप बार बार अगर हरीम ही आपको फंसा देती हैं, हरीम जानबूझ के आपको फंसा देती हैं और आप बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, आप बार बार हरीम के चुंगल में फंस क्यों जाते हैं? बहुत अच्छी बात है मेरी मोहतरमा, आप इनसे पूछें कि जब इन्होंने मुझसे पहली दफा राब्ता किया तो मैंने इनको कहा आखिर ऐसी क्या चीज है कि आप बार बार हरीम के चुंगल में फंस जाते हैं? क्या ऐसा आपके दिमाग में? टीवी वालों का जनाब इन्होंने मुझे वो भेजा, वो मेरे पास महफूज है। मैं उसी टीवी वालों को तो अपना मोशन समझता हूँ, उसके लिए मैं गया। पहली बात। फिर इनसे आप हल्फन कहें कि मुझे क्योंकि इनके ऊपर एक बदएतिमादी की कैफियत थी, मैंने इनको कलमा इसलिए नहीं पढ़ाया कि खुदा ना खासा जनाब का जो ये तो मुसलमान नहीं है, मैं इनको अच्छा मुसलमान समझता हूँ। कलमा तैयबा मैंने इसलिए पढ़ाया। अच्छा मुझे तो दुख किस बात पे हो रहा है कि पहले आपने उसको कलमा पढ़ाया, उसके बाद आपने फ्लर्ट शुरू कर दिया उसके साथ। ये क्या बात है मुफ्ती साहब, मुझे बात हजम ही नहीं हो रही। उस बदएतिमादी के खात्मे के लिए मैंने इनको कहा कि आप कलमा तैयबा पढ़ें। अब हर प्रोग्राम के अंदर इनकी नई बात होती है। अब एयरपोर्ट के ऊपर ही मेरे, यानी आप देखिए आप कलमा पढ़ाने वाली बात मान रहे हैं ना, इसका मतलब आप इतराफ करें इस बात का कि आप उनके साथ गाड़ी में बैठे और फिर हरीम जो बातें कर रही है, जो इल्जामात लगा रही है, किसी हद तक सच है। और एयरपोर्ट की मौजूदगी में जहाँ। अच्छा एक और सवाल, अच्छा हरीम मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हरीम ठीक है मुफ्ती साहब एक में मुझे दीजिएगा। हरीम एक मिनट,
हरीम मुझे बताया आप इतना हंस रही हैं, क्यों हंस रही हैं? दूसरी बात ये कि ये और भी बहुत से मुफ्ती हैं हमारे मुल्क में, कभी किसी और के साथ इस तरह की आपने कोई इल्जाम किसी पे नहीं लगाया, ये मुफ्ती कभी ही बार बार क्यों? मैं ये हूँ कि ये कितने शातिर हैं कि एक चीज़ का प्रूफ मेरे पास है, और फिर मैं आपसे इल्तिमास करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इनकी ये रिकॉर्डिंग चलाएं, ताकि इनके कॉल और इनके फ़ेल में कितना तजाद है। मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मैंने इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके अपने साथ अपने मोबाइलों में लेके आई हुई हूँ। ये मेरे पास वीडियोज़ हैं, और ये जो ज़बान और ये जो गाड़ी में इन्होंने मुझसे बातें की हैं। मजाक कर रही हूँ बस, ये जी माइक के करीब करके इसको आगे आपकी मर्जी है। चलो आप तो मुझे बताओ कि मैं फिर अकेला हूँ अपने से। आप अकेले आए, आप कल अकेले आए, अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको आवाज आ रही है? कराची में आपके दोस्त वगैरह जिसको मर्जी आप साथ लेके आए, मुझे कोई इतराज नहीं, आपने पूरे मजमे को साथ लेके आए। ये प्रोग्राम कल आप आएंगे तो या कल आप आएंगे ना तो रात इधर ही रुक जाइएगा। हम उस प्रोग्राम को या तो कल शाम में GTV में रिकॉर्ड कर लेंगे, परसों आपको भिजवा दूंगी। अगर कल आप रेस्ट करना चाहें तो परसों में रिकॉर्ड कर लूंगी। अगर आप बतौर खलीफा और सेक्रेटरी के कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात मेरे साथ रुको रात को। मैं आप हम साथ में, बिल्कुल हम साथ में खाना खाएंगे इंशाल्लाह, साथ में मैं आपकी इज्जत करूंगी। सुबह की नमाज तक इकट्ठे रहेंगे। ठीक है नाज़रीन, ठीक है हरीम, ये अभी नाज़रीन ये टीम ये वीडियो चलाएगी, ये वीडियो जरा आप अभी देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जी आप लास्ट में कुछ कहना? जी 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 ठीक है जी, अभी वीडियो नाज़रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप जरा देखिएगा। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद आपके साथ मजाक कर रही हूँ बस, ये मैंने आपके आगे कसम उठाई है, आगे आपकी मर्जी है। चलो आप तो मुझे बताओ कि मैं फिर अकेला हूँ अपने से। आप अकेले आए, आप कल अकेले आए, अगर आपको यकीन नहीं है तो क्या कहते हैं, इधर कराची में आपके दोस्त वगैरह जिसको मर्जी आप साथ लेके आए, मुझे कोई इतराज नहीं, आपने पूरे मजमे को साथ लेके आए। ये प्रोग्राम कल आप आएंगे तो या कल आप आएंगे ना तो रात इधर ही रुक जाइएगा। हम उस प्रोग्राम को या तो कल शाम में GTV में रिकॉर्ड कर लेंगे, परसों आपको भिजवा दूंगी। अगर कल आप रेस्ट करना चाहें तो परसों में रिकॉर्ड कर लूंगी। अगर आप बतौर खलीफा और सेक्रेटरी के कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात रहता हूँ। ठीक है, मैं आप हम साथ में, बिल्कुल हम साथ में खाना खाएंगे इंशाल्लाह, साथ में मैं आपकी इज्जत करूंगी। सुबह की नमाज तक इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। बोल बचत वाला कार्ड विनर्स में आज बाइक्स होंगी किसके नाम, आइए देखते हैं।